प्री डिपॉजिट कराते हैं हम, when the pre-deposit is going on, so at that time आपने उसका pre-deposit कराया, you won the appeal, you have the refund due towards the government. Due to certain reasons, you were in the process of filing the appeal, you deposited the full amount, and so on. There can be a number of cases. Now let me talk about what can be those cases. If I talk about refunds and broadly classify the refunds, so I have divided it into these 10 categories. Let's have a look. Refund, सबसे पहले जो foremost, अच्छा, two most important categories of refunds are, what are the two most important categories of refunds? It is exports and inverted duty structure. ये दो, कई बारी excess payment of tax. So let's have a look. सबसे पहले the refund is there in exports category, with payment, without payment. Then we have the refund in case of SCZ units. So these together are called as zero rated supply refund. In both, may it be exports or SCZ, zero rated. In both the zero rated, there are two mechanisms available: with payment, without payment of tax. As of now, अभी तक, लेकिन जिस दिन बजट 2021 के प्रोविजंस इंप्लीमेंट हो जाएंगे, the with पेमेंट ऑफ टैक्स का ऑप्शन बहुत कम रह जाएगा. गवर्नमेंट ने देखा बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, कई पॉइंट्स है जो विद पेमेंट ऑफ टैक्स में प्लग नहीं हो पाते, रिफंड्स आ जाते हैं, पार्टी दोनों साइड से रिकवरी कर लेती है, from the department's side also and from the other party side also. So that is why they thought that let's finish this category. They have kept it for very limited number, for specified categories they will be keeping that. Now with payment of tax as of now, and without payment of tax. With payment of tax in case of exports is a automatic option. Automatic means the shipping bill which you file for goods, only for goods, means with payment of tax for the goods, your shipping bill filed is your deemed application. But for services, my dear friends, you have to apply for the refund, although it is with payment of tax. For without payment of tax, you apply for LUT. LUT apply करते हैं आप. अब कल मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, मैंने LUT अप्लाई नहीं की तो क्या होगा? सर, अगर आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स ऑप्शन में थे और आपने LUT अप्लाई नहीं की, his question was, क्या मेरा इनपुट डिनाई हो जाएगा? The answer is no. Output will become taxable. आप जो सेल कर रहे हैं that will become taxable. आप चाहें तो उसके बाद, यानी वो कौन सी कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएगा? विद पेमेंट ऑफ टैक्स में शिफ्ट हो जाएगा, और उसके बाद आप विद पेमेंट ऑफ टैक्स करके उसका रिफंड ले सकते हैं. So without payment of tax category में LUT अप्लाई होता है. आफ्टर अप्लाइंग द LUT आप कैपिटल गुड्स का रिफंड नहीं ले सकते. अदर देन द कैपिटल गुड्स, इनपुट और इनपुट सर्विसेज का रिफंड आप लेते हो. एक्सपोर्ट्स इज सेम एज टू SCZ. दे आर टुगेदर कॉल्ड एज जीरो रेट. नो इश्यूज. After that, the broad category that comes is inverted duty structure. Now let me ask you a question. I have a client who has huge credit accumulation. I will discuss two cases with you and want all of you to write in the chat box. First case study. If I say I have a client who has huge input tax being piled up, and he is in the cement business. He imports cement from Pakistan. चलो अभी तो पाकिस्तान से ट्रेड बंद है, some other country, and sells it here in India. There is huge credit accumulation. He's in a trading of cement. Now tell me whether he is eligible for refund. इतना सारा क्रेडिट एक्यूमुलेशन पड़ा हुआ है, क्या ये इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कैटेगरी का रिफंड है या नहीं है? फर्दरमोर इसको इलेबोरेट करते एग्जांपल को. अब मैं आपसे बात करती हूँ. उसने सीमेंट इंपोर्ट किया 280 रुपीज पर बैग पे. ऑलराइट, 280 रुपीज पर बैग पे. सीमेंट पे रेट क्या है? सीमेंट पे कोई BCD नहीं लगती, ओनली एंड ओनली IGST लगता है ऑन इंपोर्ट एट द रेट ऑफ 28%. ऑलराइट, नाउ IGST पे कर दिया. जब वो
गुड्स कस्टम पे पहुंचे, कस्टम का अपना अपने वैल्यूएशन रूल्स है, कस्टम ने उसको वैल्यू किया 320 रुपीज पर बैग और आपसे IGST लिया 320 रुपीज। दिस पर्सन सेड ठीक है 320 तो कस्टम की वैल्यूएशन है, मैंने तो इंपोर्ट 280 पे किया था, ही सोल्ड एट 310 पर बैग, he sold at 310 per bag. Now my question to you is he has a credit accumulation, whether this is the case which is fit for IDS, yes or no? क्या ये inverted duty structure है या नहीं है? Tell me quickly. अच्छा आशुतोष जी तो कहते हैं नहीं है जी, ये तो आप तो आशुतोष जी मुझे रिफंड नहीं मिलेगा, ओम प्रकाश जी मुझे रिफंड नहीं मिलेगा कि मिल जाएगा? अच्छा सब कहते हैं नहीं मिलेगा, भाई रिफंड भी नहीं मिलेगा। सी सच ए नॉलेजेबल ऑडियंस, यू तो ऑलरेडी नो एवरीथिंग। इतना बड़ा सा क्वेश्चन, सर आई हैव टू रीड द क्वेश्चन एक्चुअली, सो इसको हम एंड में लेंगे। ऑलराइट चलिए सर, इस केस you are absolutely right, it is not a case of inverted duty structure. Reason: import paid 28% tax, sale paid 28% tax, and what are my words? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, ड्यूटी का रेट इन्वर्टेड होना चाहिए। इन्वर्टेड मतलब इनपुट पे ज्यादा और आउटपुट पे लेसर, बट दिस इज नॉट द केस। यहां तो जो क्रेडिट एक्यूमुलेट हो रहा है दैट इज ड्यू टू valuation difference. So as a result, this is not a fit case for IDS. चाहे क्रेडिट एक्यूमुलेशन है, आप उस क्रेडिट को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, आप उस क्रेडिट को यूज कर सकते हो, बट आप कभी इसको एनकैश नहीं करा सकते। सेकेंड एग्जाम्पल, एक पर्सन का ह्यूज क्रेडिट एक्यूमुलेशन है, he is going to shut down his business. Can he take the refund? Yes or no? Can he take the refund? Yes or no? No, absolutely. सीधा नो बोल दिया। पहले ये तो पूछ लेते कौन सा केस था। My issue is neither exports nor the inverted duty. In that case, you are absolutely right, Ritesh ji and Maitri ji, that no, it is not a fit case for refund. Rather, जब आप business बंद करते हो, आपके जितना स्टॉक पड़ा होता है, यू आर सपोज टू रिवर्स योर ITC। जितने कैपिटल गुड्स होते हैं जिनकी लाइफ अनएक्सपायर्ड होती है, उनका आपको जो इनपुट टैक्स है, लाइक 5 years इज द लाइफ व्हिच इज अज्यूम्ड इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स इन GST, यू हैव टू रिवर्स दैट। ऑलराइट चलिए, इवन अगर उसके बाद भी कोई इनपुट बच जाता है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर रिफंड अनटिल और अनलेस या तो वो एक्सपोर्ट कैटेगरी में फॉल करे या फिर वो सेकेंड कैटेगरी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में फॉल करे। ऑल राइट, सो हमने बात की थर्ड कैटेगरी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, जिसमें हमें रिफंड मिलता है अनयूटिलाइज्ड ITC ऑन रूपा, मिस रूपा, कैन यू प्लीज पुट योर माइक ऑन म्यूट? थैंक यू सो मच। Refund of unutilized ITC on account of accumulation due to inverted duty structure. Friends, इसमें हमें ना इनपुट्स का, सिर्फ और सिर्फ इनपुट्स का रिफंड मिलता है, ना इनपुट सर्विसेज का और ना ही कैपिटल गुड्स का। And you know, this has been a very contentious issue, that why the refund of input services is not allowed. कैपिटल गुड्स में तो अभी मैं आ ही नहीं रही, आई एम नॉट कमिंग ऑन टू कैपिटल गुड्स। रीजन, कैपिटल गुड्स का तो दोनों में ही नहीं मिल रहा। ऑल्दो कैपिटल गुड्स का रिफंड ना देना is a bar, is a hindrance towards the free flow of credit, but still input is what I say, even in that case the input is allowed. So आपका क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट नहीं है, बट आपको एनकैशमेंट नहीं है। फ्रेंड्स, रिफंड देना या ना देना is dependent upon the conditions that are given in the act. So even if the government says that in this case the refund will not be allowed, like in case of clothes traders, in the fabric
ट्रेडर्स, फैब्रिक मैन्युफैक्चरर्स, अगर उनका कोई रिफंड बनता था तो उनको टिल जून 2000 रादर जुलाई 2018 तक फॉर 13 मंथ्स जो अमाउंट था वो अलाउड नहीं था एज अ रिफंड. नो इश्यूज. There is a difference between ITC and refund. ITC on fulfillment of conditions become a vested right. Refund is allowed if the statutes allows you the same. इसी बेस पे शबनम पेट्रोफेल्स का केस भी आया कि आपने नहीं देना रिफंड, कोई बात नहीं, आप कहते हो जी जुलाई 2018 तक हम रिफंड नहीं देंगे, नो इश्यूज. The legislature can put on the conditions for not giving the refund, subject to the conditions mentioned in section 54. But if you say कि जो आईटीसी बचा आप उसको लैप्स कर दीजिए, नो, नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल. रीजन, ITC on the fulfillment of certain conditions becomes my vested right. When it is a vested right, you cannot make it lapse. So Shabnam Petrophils का जो judgment था, that was a favorable judgment, but इस पे stay लगा हुआ है, and this is pending with the Honorable Apex Court. However, let's move forward. इसके अलावा नेक्स्ट कैटेगरीज, अभी मैंने आपसे किसी से 2 केस लॉ डिस्कस नहीं किए. जब हम रिफंड्स को एनालाइज करेंगे आगे चल के, सो आई विल डिस्कस द केस फॉर द इनपुट सर्विसेज इन रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी. आपने गलती से 1 0 एक्स्ट्रा लगा दिया, रिफंड ज्यादा, टैक्स ज्यादा पे कर दिया, यू कैन टेक द रिफंड. यू कैन टेक द रिफंड. इंट्रास्टेट सप्लाई को इंटरस्टेट दिखाया, गलती से ऐसे आईजीएसटी पे करना था, गलती से सीजीएसटी एसजीएसटी पे कर दिया. what you, as per the law, you are supposed to pay the correct tax. आईजीएसटी पे करिए दोबारा से और सी और एस का रिफंड ले लीजिए. रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई विच इज सब्सिक्वेंटली हेल्ड एज इंटरस्टेट, दोबारा पे करिए, इंटरेस्ट नहीं लगता एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 77, लेकिन टैक्स दोबारा देना पड़ता है और पुराने टैक्स का रिफंड ले लेते हो. ऑल्दो माय डियर फ्रेंड्स, नाउ हमें कई जजमेंट्स ऐसी मिलती हैं, जैसे साजी एंटरप्राइजेस, साजी की जजमेंट है बाय ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट, विच सेज कि इट इज इंटरनल मैटर ऑफ द गवर्नमेंट that if intrastate being interstate, interstate being intrastate, the government should pass the necessary entry rather than saying the assessee, registered person, to pay the taxes again and take the refunds of the originally wrong paid taxes. Friends, इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं आता, पर्टिकुलरली मना किया गया है, लेकिन इस कैटेगरी में जब हम रिफंड्स अप्लाई करते हैं सो हमें पर्टिकुलरली ऑर्डर नंबर डालना पड़ता है. सो पहले हमें ऑफिसर कंसर्न पर्टिकुलर ऑर्डर देगा, यस आपने गलत पे कर दिया था, यही करेक्ट टैक्स होना था, आपने दोबारा पे कर दिया है, अब आप रिफंड के लिए एलिजिबल है. जब तक आप वो ऑर्डर नंबर नहीं डालते आपको रिफंड अलाउड नहीं होगा. नेक्स्ट कैटेगरी, डीम्ड एक्सपोर्ट्स. मेनी पीपल कंफ्यूज एक्सपोर्ट्स विद द डीम्ड एक्सपोर्ट्स, बट लेट मी टेल यू दीज आर 2 डिफरेंट कैटेगरीज. Deemed export is particularly the by notification, the 4 transactions that are included. We will study that later on. Now, other than that, appeal में आपने टैक्स जमा कराया, you won the appeal. कोई assessment, provisional assessment कराई, you won that, or the decision comes favorable. आपने 18% से टैक्स पे किया था, 12% बनता था, you can take the refund. Excess balance in the cash ledger, you can take the refund. Sir, ये एक ऐसी कैटेगरी है माय डियर फ्रेंड्स, या मैं कहूं एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स, जहां पर आई एम डिस्कसिंग विद यू द एंट्री केसेस आल्सो इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी. ये एक ऐसी कैटेगरीज हैं जहां हम कहते हैं इवन द रिलेवेंट पीरियड ऑफ 2 years शुड आल्सो नॉट अप्लाई. प्री जीएसटी रिजीम में भी हमारे पास जजमेंट्स थी. सर मैंने पूछा था बिजनेस बंद करने जा रहे हो, क्या रिफंड ले सकते हो? यस, अगर एक्सेस बैलेंस कैटेगरी कैश बैलेंस में है यू कैन टेक द रिफंड. एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स कैटेगरी है, यू कैन टेक द रिफंड प्रोवाइडेड दिस इज नॉट अ टैक्स. एनीथिंग व्हिच इज नॉट इन द नेचर ऑफ टैक्स, which is collected without the authority of law, article 265 is not tax. So इसके ऊपर there are a number of cases which says even if the 2 years time period has expired, still one is eligible for the refunds.
And last category is any other category. Now I ask you, can you apply any refund under any other category? चलिए ऐसा करते हैं, मैंने एक refund apply किया. Let's suppose refund of unutilized ITC on account of IDS, inverted tax structure, inverted duty rate structure. The refund got rejected. Can I apply it under any other category? Yes or no? Quickly. Yes or no? Apply कर सकते हैं? Yes or no लिखना है, वो तो सारे ही लिख सकते हैं ना. You can write. Apply कर सकते हैं? The answer is no. Sir, this any other category is not a residuary category. This any other category came for certain specific purposes for which the government issued a proper circular that, okay, I give you an example. जैसे यही फैब्रिक वाले पर्सन्स का ही बताती हूँ. जुलाई में जब इन्होंने कहा आप अपना क्रेडिट लैप्स कर दीजिए, लैप्स करने के बाद जब आप जो आपका एक्सेस क्रेडिट है उसको राइट ऑफ कर दो. राइट ऑफ कहाँ करोगे? 3B में करोगे ना. अब इस पर्सन ने जुलाई की रिटर्न में जो क्लोजिंग बैलेंस बचता था क्लोजिंग स्टॉक में छोड़ के उसको राइट ऑफ कर दिया जुलाई की रिटर्न में. अगस्त ऑनवर्ड्स इनको रिफंड मिलना स्टार्ट हो गया. जब इन्होंने अगस्त के मंथ में अप्लाई किया रिफंड, उसने बोला आपका 3B नेगेटिव जा रहा है, क्योंकि अगस्त के मंथ में उन्होंने रिवर्सल किया था, जुलाई का रिवर्सल अगस्त की रिटर्न में किया था. गवर्नमेंट पर्टिकुलरली इश्यूड बाय वाइट सर्कुलर दैट ओके, as you are facing this difficulty, kindly apply, you can apply it under the category any other. But that does not mean if the refund gets rejected, it can create a problem later on for the officer concerned as well as for you when the particular file is audited later on. So any other category is a residuary category for such particular matters, not like if the refund gets rejected, you can reapply under any other category. I hope till here we are clear. This window, now you all know. Yes, refunds. Now it is a fully electronic process with effect from 26/9/2019. अभी जो मैंने आपको numbering बताई थी 1 2 3 4 5 6 except one, and that one was goods. क्योंकि यहाँ पे विद पेमेंट ऑफ टैक्स गुड्स ऑटोमेटिक रिफंड आता है, यू नीड नॉट टू अप्लाई. इसको छोड़ दीजिए, बाकी सबकी एप्लीकेशन यहाँ लगाई जाती है. लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन. आपको यहाँ पे SCZ के रिफंड की ऑप्शन दिख रही है? एंड इफ आई आस्क यू, कैन SCZ क्लेम रिफंड? यस और नो? एनीबडी हियर हु डील्स इन SCZ? Anybody who deals in SCZ? Only then I will discuss, otherwise I will not discuss that. Nobody? Okay, so इसको यहीं छोड़ते हैं. आज जो SCZ होता है उसमें सिर्फ ओके सुकन्या जी, सुकन्या रामकृष्णन जी से lot of person available over here, so we can continue. Sorry, lots of persons available to respond on chat. Okay, all right. So I wanted to say that in this case, SCZ case, SCZ is not eligible for refund. It is the supplier to SCZ who is there for the refund. There is a particular case also. Huge of amount of SCZ is piled up. You know, I tell you what happened, Ramakrishnan ji. There was a case. Saurabh ji, no issues of responding on the chat. They can. I was just asking about SCZ. So don't worry. Let them be easy the way they want to be. All right. I was just asking that whether they want me to discuss SCZ or not. That's all. All right. So friends, if I talk about SCZ, in case of SCZ refunds, the person who supplies to SCZ, for him, it is a zero-rated supply. For him, it is a zero-rated supply and not for the SCZ. So, SCZ, आपको अगर जो person supply कर रहा था, what was happening? ये लोग SCZ से recovery भी कर लेते थे और government से refund भी ले लेते थे. So SCZ से जब इन्होंने रिकवरी कर ली, so इनका पैसा, SCZ का जो पैसा था, मनी था, वो ब्लॉक होना शुरू हो गया. And particularly the case of Britannia came in and they said, no, SCZ cannot claim the refund. It is the supplier of SCZ. See,
supplies to SEZ, that person is eligible for the purpose of refund, and therefore Ramakrishnan ji, the amendment was made in section 54 subsection 8 itself. All right, chaliye, now we come to the main section, section 54. Friends, अगर मैं section 54 की बात करूं, क्या हमें लेट फी का रिफंड मिलेगा? मैंने लेट फी ज्यादा पे कर दी, am I eligible for refund? Yes or no? The answer is yes, मिल सकता है. आप टैक्स का रिफंड ले सकते हैं, इंटरेस्ट का रिफंड ले सकते हैं, एंड इवन एनी अदर अमाउंट फी पेड, लेट फी ऑल्सो. अगर आपने एक्सेस पे कर दिया है तो यू कैन मेक एन एप्लीकेशन फॉर इट्स रिफंड विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द रेलेवेंट डेट इन फॉर्म RFD 01 एज पर रूल 89. नाउ द वर्ड्स हियर आर वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एनी अदर अमाउंट? सर, कोई प्री डिपॉजिट कराया अपील के लिए, वो लेट फी है, वो एनी अदर अमाउंट. रेलेवेंट डेट क्या है? रेलेवेंट डेट पर्टिकुलरली एक्सप्लेनेशन में दी हुई है. और अगर मैं रेलेवेंट डेट की बात करूं, दिस इज द एक्सप्लेनेशन 2. एक्सप्लेनेशन 1 पढ़ी थी, रेट्रोस्पेक्टिव ऑर्डर ऑफ वेवर ऑफ लेट फी. रितेश जी कहते हैं ये क्या कह दिया आपने, वेवर ऑफ लेट फी तो सबको चाहिए. रितेश जी, अगर मैं 2 मिनट के लिए आपको, क्योंकि मैंने रिफंड ऑफ लेट फी की बात की है सर, अगर तो डिपेंड करता है, अगर आपसे लेट फी ज्यादा पे हो गई है देन यू कैन टेक द रिफंड्स. जैसे अगर आपने देखा होगा स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने लेट फी लगाई थी, लेट फी वेवर कर दी, वो वेवर के जो अमाउंट्स थे वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर्स में दोबारा क्रेडिट बैक हो गए थे. अगर आपने कोई लेट फी पे की है बट अगर वो एमएनएसटी स्कीम में वेव होती है, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर रिफंड, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर रिफंड. लेकिन अगर आपने कोई अमाउंट पे किया, जैसे मैं इंटरेस्ट का भी एग्जांपल देती हूँ, सेक्शन 50 की अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिवली नोटिफाई हो गई है. जब वो रेट्रोस्पेक्टिवली, चाहे वेवर ऑफ लेट फी हो एज यू आर आस्किंग, या रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन लॉ हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट लाइक डन इन प्रोविजो टू सेक्शन 50, in that case one becomes eligible for refund. I hope the point is clear, Ritesh ji, right? लेकिन अगर गवर्नमेंट प्रोस्पेक्टिव वेवर्स देती है, जैसे लेट फी में आए हैं, इस डेट के बाद अगर आप भरेंगे तो लेट फी नहीं लगेगी, और आपके क्लाइंट ने 5 दिन पहले ही लाख रुपए की लेट फीस भरी है, you are not entitled for refund. The reason being it is not a retrospective order of waiver of late fee. All right, chaliye, let's move ahead. I hope Ritesh ji the point stands clarified. Now if I talk about the relevant date, my dear friends, exports की relevant date क्या होती है? शॉर्ट में अगर मैं बताऊं, जिस दिन आपके गुड्स इंडिया के कस्टम फ्रंटियर्स को क्रॉस करते हैं, when the ship leaves India, when the aircraft leaves India, that. All right. Second, अगर मैं unutilized ITC के relevant date की बात करूं, अब यहाँ पे क्या था, अमेंडमेंट आई थी. सबसे पहले CGST एक्ट अमेंड हुआ था विद इफेक्ट फ्रॉम 1st February 2019. 1st February 2019, और वही डेट था जब ये सेक्शन अमेंड किया गया था, वाइड CGST अमेंडमेंट एक्ट 2018 अगस्त के मंथ में अमेंडमेंट एक्ट आया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 to 2019. ये प्रोविजन चेंज हुआ. अब ये प्रोविजन चेंज क्या हुआ, लेट्स हैव अ लुक थ्रू द एग्जांपल्स. फ्रेंड्स, बिफोर अमेंडमेंट अगस्त 2017 का रिफंड, अगस्त 2017 का रिफंड आप अप्लाई कर सकते थे ईयर एंड से. अगस्त 2017 का ईयर एंड क्या होगा, 31st March 2018 प्लस 2 years. प्लस 2 years मीन्स 2020, 31st March 2020 तक. और आपको याद होगा इस टाइम पे कोविड आ गया था. कोविड आ गया था, एज अ रिजल्ट ये डेट्स फर्दर एक्सटेंड हो गई थी, बट अमेंडमेंट हो चुकी थी एक्ट में. उन्होंने कहा अब हम अगस्त 17 का रिफंड ईयर एंड से नहीं देखेंगे. अगस्त की रिफंड कब, रिटर्न कब ड्यू थी, 20th 9.
प्रोवाइडेड एक्सटेंड नहीं हुई। 20th 9 जिस मंथ का रिफंड है उसकी ड्यू डेट से 2 years, उसकी ड्यू डेट से 2 years, तो एज अ रिजल्ट द टाइम पीरियड बिकम्स 19, rather I should write here 19/9/2019 because एक साल एक दिन पहले हो जाता है. So this was the amendment. अब यहाँ पे इशू क्या अराइज हुआ, डिपार्टमेंट के पास जो भी एप्लीकेशन फेब 2019 के बाद जा रही है, किसी भी पीरियड, अगस्त 17, यू से दिसंबर 17, January 2019, whichever application is filed post February 2019, they are taking it under after amendment period. What is the litigative issue? That amendment should apply prospectively from the month, यानी February 2019 की एप्लीकेशन से. इसका मतलब जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2019 तक की एप्लीकेशन पुराने लॉ में जानी चाहिए. द इशू इज चैलेंज्ड but still pending, no decision as of now. Practically the department says whatever application you are filing post February 2019 will be under the post after amendment point. I hope the amendment to this inverted duty relevant date stands closed. Next issue arises in case of exports. एक बड़ा अच्छा सा एक एग्जाम्पल देती हूँ. मेरे पर्सन ने, चलिए आप आंसर देंगे इसका तो जरा सोच के देखिएगा. आपका एक क्लाइंट आया, उसने कहा सर मैंने 2 एक्सपोर्ट्स की थी, लेट आया, पहले कहीं और था, सीए ही नहीं रखा था, नॉर्मल किसी से रिटर्न करा रहा था, नहीं पता चला, 2 years का टाइम निकल गया. अब रितेश जी के पास आता है, बोलते सर 1 month में 2 एक्सपोर्ट्स की थी. रितेश जी बोलते कब कब की थी? बोलता है 8 अगस्त को की थी और एक 28 अगस्त को की थी. तो रितेश जी बोलते हैं मंथ तो सेम है भाई तुम्हारा. बोलते हैं हाँ, पर आज तुम आ रहे हो मेरे पास, कौन सी डेट हो गई है? बोलते हैं 15/8 हो गई है. 15 अगस्त को आया, छुट्टी थी ना तो सोचा चलो सीए के पास तो चले ही जाते हैं. 15 अगस्त को आया तो रितेश जी बोलते हैं कि इसका टाइम पीरियड 2 years, द डे व्हेन द गुड्स लीव इंडिया, 8/8/2017 प्लस 2 years, 7/8/19, 28 plus 2 years, 28/90. But refund application Ritesh ji ne move ki on 20th/8/2019. My question to all of you is, the officer will give the refund of only one, export number 2, or both export number 1 and export number 2? I need the answer with certain reasoning also. If you say yes or no, tell me both or single. Both or single? Anybody? Sir, as per law, अगर मैं relevant date के according चलूं, only one export, export number 2 is eligible for the refund, because for export number 1 the time period is already expired. Now let's make certain value addition to your client's business. Now how Ritesh ji argues that to the officer concerned, मैं officer हूँ, I raised doubt to Ritesh ji कि Ritesh ji एक का तो time period expired हो चुका है, 8/8 वाला 7/8/2019 था, आपने तो 20/8 को एप्लीकेशन लगाई, टाइम पीरियड पूरा हो गया, तो 28/8 वाले का मैं आपको रिफंड दे दूंगा, but not before that. Now Ritesh ji says, sir please come to section 54 subsection 3 with me. I am the officer and Ritesh ji is explaining me कि देखिए वहां लिखा हुआ है refund of any unutilized input tax credit at the end of any tax period. वो कहते सर smallest tax period कौन सा है? Smallest tax period month. तो सर बिल्कुल आप सही कह रहे हो, बट मैं 1 month की एप्लीकेशन एक ही बार लगा सकता हूं. Single application is to be applied for one. So this is an argument which Ritesh ji can give, that because ये दोनों
अगस्त मंथ की थी ट्रांजैक्शन, यू आर राइट इन ascertaining, बट आई नीड अ बेनिफिट गोइंग टू सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 itself, जो कहता है एप्लीकेशन फॉर अ रिफंड इज टू बी मेड एट द एंड ऑफ एनी टैक्स पीरियड, end of any tax period within a period of 2 years. So he can present an argument that yes, in this case, give me the refund for both 1 as well as 2. Of course, it is going to be a litigative issue, but this argument can work at a higher level. Now, अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हम ऐसे करते हैं, अप्रैल मंथ का टाइम पीरियड निकल गया, दैट इज गॉन, चला गया, खत्म हो गया, हम उसको मई जून जुलाई इकट्ठी क्लब करके लगा देते हैं। सर, अगर आप एप्लीकेशन को क्लब करके भी लगाते हैं, इवन देन जो टाइम पीरियड है हर मंथ का सेपरेट देखा जाएगा। यहां मैंने क्लबिंग का बेनिफिट क्यों दिया, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट डिवीजन थी, मंथ से कम तो एप्लीकेशन ही नहीं लगती, लेकिन अगर आपकी मंथली एप्लीकेशन लगती है और आप क्वार्टरली लगा रहे हो, ऑफिसर कंसर्न हर मंथ के लिए देखिए। आई होप द पॉइंट स्टैंड्स क्लियर। सो नॉर्मली आपको एप्लीकेशन एक्सपोर्ट के केस में पूरे मंथ की टोटल करके, जो वैसे तो हर व्हेन द शिप लीव्स इंडिया देखनी है, बट हियर यू कैन प्रेजेंट दिस argument that as a single application is allowed, so I have clubbed both the months and it is within a period of 2 years. All right, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले एक मैं 54 का आइडिया दे दूं। 54 में रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट प्रोवाइजो में कवर्ड है। पहले उसने कह दिया सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10, मतलब जो आपकी डिडक्शन बनती है, जो आपकी कोई डिडक्शन करनी है, कुछ विद होल्ड करना है, वो करने के बाद हम आपको रिफंड दे देंगे अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का, सिर्फ दो केसेस। एंड फ्रेंड्स, नाउ आई रियली नीड योर अटेंशन टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। हैव अ लुक ऑन दिस पॉइंट, हैव अ लुक। And now I will making you sit on the seat of the judge and you decide what should be done. If I talk about, just a minute, sir. Yeah. If I talk about no refund of unutilized input tax credit, what are the words used? Unutilized input tax credit here. And input tax credit means इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस। क्यों, कैपिटल गुड्स तो पहले ही बाहर किया हुआ है। अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट मींस ऑफ द इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। अ कॉमन वर्ड इज यूज्ड इन द प्रोवाइजो, नो रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड। ओके, कौन से दो केसेस में बोलते हैं आपको अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड सिर्फ दो केसेस में मिलेगा। Word used is common word. What is the common word? Unutilized input tax credit मिलेगा कब? पहला केस, कंडीशन नंबर 1, या तो आप एक जीरो रेटेड सप्लाई करते हैं, हैव अ लुक, अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड मिलेगा कब? ईदर ऑफ द टू सिचुएशंस, और कब? या तो आप जीरो रेटेड सप्लाई करते हैं, या आपका रेट ऑफ इनपुट इज ग्रेटर देन रेट ऑन आउटपुट। अब रेट ऑफ इनपुट इज ग्रेटर देन, सर इनपुट वर्ड कंडीशन में यूज हुआ है, इनपुट वर्ड यहां यूज नहीं हुआ यूआईटीसी के लिए। रेट ऑफ इनपुट is greater than rate of output, and if I say rate of input is greater than rate of output, can I name it as IDS? Yes, it is inverted duty structure. Inverted duty structure है या नहीं है, उसके लिए वर्ड इनपुट यूज किया गया है। एक बार आप IDS में क्वालिफाई कर गए, उसके बाद रिफंड यूआईटीसी का मिलेगा। इसका मतलब, और यूआईटीसी का मतलब अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट
वो जीरो के लिए भी वर्ड सेम है, जीरो रेटेड के लिए भी सेम है, और आईडीएस के लिए भी सेम है। अब सुनिए, अगर मैं ऐसे लिखूं, यूआईटीसी का रिफंड जीरो रेटेड में मिलेगा या फिर आईडीएस में मिलेगा, क्या यूआईटीसी का अलग अलग मतलब होगा? अरे कहाँ लिखा है एक्ट में? सेक्शन 54 तो इतना ही कहता है मेरे भाई कि सुनो, कैपिटल गुड्स का नहीं दूंगा। अब आपने एक रूल इंसर्ट किया, रूल 89 सब रूल 5, और उस रूल में लिख दिया कि भाई आईडीएस के लिए यूआईटीसी का मतलब सिर्फ और सिर्फ इनपुट्स होगा, इनपुट सर्विसेज नहीं होगा। और इनसे यही क्वेश्चन रेज किया गया कि व्हाई आप कहीं भी सेक्शन 54 में नहीं लिखा कि यूआईटीसी का मतलब कुछ और है फॉर जीरो रेटेड और फॉर आईडीएस. So how a rule can supersede a law, an act provision? As a result, rule 89 sub rule 5 जो कहता है आईडीएस में यूआईटीसी का मतलब सिर्फ इनपुट्स है, अरे एक्ट में जो इनपुट वर्ड यूज हुआ था वो आईडीएस डिसाइड करने के लिए हुआ था, ना कि यूआईटीसी की जगह हुआ था. As a result, there was a judgment of the VKC footwear जिसने कहा रूल 89 सब रूल 5 is ultra wires the act, क्योंकि सेक्शन 54 में कहीं पर भी नहीं लिखा कि भाई ये आपका सिर्फ और सिर्फ इनपुट और इनपुट सर्विस. और सर ये भी थ्रू अमेंडमेंट हुआ था. 89.5 रूल आल्सो वाज लेटर ऑन अमेंड. स्टार्टिंग में यही था, पहले कुछ मंथ्स के लिए इनपुट और इनपुट सर्विसेज दोनों का मिलता. And a favorable judgment in the form of VKC footwear came and said yes, 89 sub rule 5 is ultra wires. But this happiness didn't last so long. कारण सर ये खुशी इसलिए थी जितना ये सेक्टर है इसमें इनपुट सर्विस बहुत ज्यादा होती है. आई गिव यू फैब्रिक का एग्जांपल ले लें. अगर हम फैब्रिक वाले जो है वो इन्वर्टेड ड्यूटी में फॉल करते हैं. क्यों भाई? फैब्रिक बिकता है 5% पे और इनपुट्स आते हैं 12%, 18% और इवन 28%. कोल एक्सेट्रा, सो मेनी इनपुट्स आते हैं. एज अ रिजल्ट अगर मैं उनके इनपुट्स की बात करूं तो जॉब वर्क वो जो बाहर से कराते हैं, प्रिंटिंग एंड डाइंग कराते हैं, सारे रिफंड्स फिनिश हो जाते. But this didn't last so long, and there was a case of TVL Transtrolling Afcons joint venture. In this case, now see the matter. They said whether section 54 subsection 3(2) जो अभी हम section 54 डील कर रहे थे, क्या ये आर्टिकल 14 यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ को इन्फ्रिंज नहीं करता. आप ये नहीं कह सकते कि भाई एक्सपोर्ट्स के केस में और आईडीएस के केस में सेम ट्रीटमेंट होना चाहिए. एज अ रिजल्ट रूल 89.5 इज नॉट अल्ट्रा वायर्स. सर मेरा तो क्वेश्चन ही ये नहीं था. मैंने तो कहा ही नहीं कि भाई आप एक्सपोर्ट को और आईडीएस को बराबर रख दो. व्हेन आई सेड दिस, I तो said in the act. आपको नहीं देना मत दीजिए, एक्ट में तो लिखिए. आपने एक्ट में वर्ड्स क्या लिखे? यूआईटीसी का रिफंड देंगे जीरो रेटेड में भी और आईडीएस में भी. और यूआईटीसी एक ही वर्ड के दो मतलब. फॉर जीरो रेटेड इनपुट्स and input services, and for IDS only inputs. But the judgment of TVS was given on the ground that there cannot be equality. For different things, different provisions can be made. As a result, 89 sub rule 5 is not. Sir, ये पहले केस 29th of April को लिस्ट हुआ था, but due to COVID second wave, it could not be taken up before the Honorable Apex Court. Now, in the month of August, 4 days long session was hearing. The arguments were there on the particular case. The judgment is yet reserved, but it was such a good argument. And now you tell me, do you think whether VKC will hold good or TVL will hold good? What is your take? What is your take on it? Let me make you sit on the chair of the judge and decide. You see, to be judge is very difficult, right? So
According to me, the judgment of VKC was given on quite correct footings, stating, आशुतोष जी बोलते हैं जी मैं भी VKC के support में हूँ. Sir, because the law, the act does not make any sort of distinction, and just by way of rule, the same cannot be brought in. Now, moving ahead, after discussing VKC and TVL, interest मिलेगा 6% देने के रेट और लेने के, और आपको 54 सबसेक्शन 8 कहता है हाँ जी 2 लाख तक. एक और चीज बता दूं, सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने हैं, रूल्स में भी लिखे हैं, एक्ट्स में भी लिखे हैं, एंड इवन इन योर रूल्स में लिखे हैं और सर्कुलर में लिखे हैं. लेकिन अगर आपका रिफंड 2 लाख से कम है तो आपको ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन देने की जरूरत नहीं है. ये मैं क्यों बता रही हूँ, कई बार हमारे छोटे रिफंड्स होते हैं एंड समटाइम्स वी गेट हैरेस्ड बाय द डिपार्टमेंट. सो फ्रॉम बिलो 2 लाख. और आजकल एक बहुत इशू है कि आईडीएस के रिफंड्स में भी द डिपार्टमेंट समटाइम टॉक्स अबाउट सीए सर्टिफिकेट चाहिए. माय डियर फ्रेंड्स, एक्सपोर्ट्स केस, IDS case, I have made the list also in the PPT. No CA certification is required, not required. So rules भी बोलते हैं, rule 89 को अगर आप clear cut पढ़ोगे वो clearly mention करता है it is not required, although it has been made part of the circular. Circular cannot supplement. Now moving ahead, 6% से आपको देंगे इंटरेस्ट, 9% से देंगे अगर किसी अपील की वजह से है. जो रिफंड्स हैं ड्यू टू दिस एक्सपोर्ट्स, वो आपको विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days 90% रिफंड आ जाएगा, और बाकी आपको प्रोविजनली दे देंगे 90%. द रिमेनिंग अमाउंट विल बी लेटर ऑन गिवन. नाउ लेट मी कम टू सर्टेन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स. फ्रेंड्स, पंचिंग ऑफ रिफंड क्लेम्स एग्जांपल से समझते हैं. ये चेंज भी क्यों आया, सर्कुलर 125 में एक एडिशनल प्रोविजन लगा दिया गया था जिसको कि ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट इन केस ऑफ पीताम्बरा बुक्स लिमिटेड ने लेट डाउन किया, एंड दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट वाज केम अप विद द अमेंडेड प्रोविजन. नाउ सुनिए प्रोविजन चेंज क्या किया. अब एक पर्सन है, आशुतोष जी के पास आता है, एक्सपोर्टर है, बोलता है आशुतोष जी मैंने मार्च में परचेज की है और इनपुट मिल गया 1 लाख, बट माल तैयार करने में टाइम तो लगेगा, तो अप्रैल में मैंने एक्सपोर्ट कर दी वही जो गुड्स परचेज किए थे. आशुतोष जी बोलते हैं ये क्या कर दिया भाई. बोलता सर क्या कर दिया, ईयर एंड में ऐसा काम क्यों कर लिया. बोलता क्यों, अरे कैसे कंबाइन करेंगे रिफंड के लिए, तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो, यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड, लेकिन मार्च मंथ में एक्सपोर्ट 0 और रिफंड 0, और अप्रैल मंथ में इनपुट 0 रिफंड 0. तो कहते सर इकट्ठा अप्लाई कर दो. बोलते नहीं कर सकता. हाँ यही काम तुमने फेब और मार्च में किया होता, देयर वुड नॉट हैव बीन एनी प्रॉब्लम, आई वुड हैव कंबाइंड फरवरी और मार्च, बट पैरा 8 ऑफ सर्कुलर 125 सेड नो, आप ईयर एंड पे 2 सालों को इकट्ठा कंबाइन नहीं कर सकते. Now this is the effect of the post amendment merchant trading transaction. Exporters were hugely benefited by, so बहुत सारी trade representations भी गई थी and they said yes now you can combine. इसका मतलब आशुतोष जी अब कहते हैं मैं 2 सालों का रिफंड भी इकट्ठा अप्लाई कर सकता हूँ. 1 महीने का, 1 month is the shortest period, 2 months, 1 quarter, 5 months, 10 months, 15 months, 18 months, 24 months, बस टाइम पीरियड 2 साल है. ऑल राइट, सो नाउ यू सी सेम पर्सन जिसके आशुतोष जी वाज फाइलिंग द रिटर्न, नाउ व्हाट ही विल से, लेट्स कंबाइन मार्च एंड अप्रैल, इकट्ठा रिफंड अप्लाई करो. परचेज इनपुट 1 लाख, एक्सपोर्ट 12 lakhs, रिफंड पूरा 1 lakh. So this was the benefit of this amendment. Section 55, my dear friends, deals with certain specific types of refunds. जैसे कैंटीन वालों को 50% रिफंड मिलता है, गोल्डन टेम्पल को भोज योजना में मिलता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे जो शॉप होती है, अब तो सर इंटरनेशनल ट्रेवल ही बहुत कम हो गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे जो रिटेल आउटलेट्स होते हैं, सो UNO members के लिए रिफंड. The provisions are entirely different. I'm not discussing that. 56 deals with the interest. Now let me directly come to, yes, one important case law which I want to discuss with you, like we discussed VKC and TVL F1s. Likewise, Jian International.
जो टाइम पीरियड्स रूल्स में मेंशन है, कितने दिन में आनी चाहिए आपकी RFD 02 एक्नॉलेजमेंट, कितने दिनों में आनी चाहिए? फॉर हाउ मेनी, विद इन हाउ मेनी डेज? 15 डेज। रिफंड कितने दिनों में आना चाहिए? बिल्कुल राइट मैत्री त्रिवेदी जी, 15 डेज। रिफंड कितने दिनों में आना चाहिए? 60 days. The department was not adhering to the time periods. Jian International case says these time periods are not recommendatory. These are mandatory time periods. और अगर डिपार्टमेंट ने 15 दिनों में या तो ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, RFD 03 नहीं दिया या RFD 02 नहीं दिया, entire process goes futile. Likewise, अगर डिपार्टमेंट ने 60 days में रिफंड नहीं दिया, so they are supposed to give it along with interest. Friends, practically, person, I was sitting in a department and I asked that person, what is he doing? He said, 15 दिन जिनके होने वाले हैं ना, मैं फटाफट से RFD 02 या sir, they were issuing 02 like anything without checking the documentation, and that is where. और उसके बाद जब वो show cause notice में objection लगाते हैं, ये document नहीं आया, entire process in the appeal will go waste. You yourself is saying कि भाई ये सारे documentation complete है और आप खुद ही बोलते हो अरे ये document तो आया ही. So these time periods are mandatory. Ritesh, you want to say something? मैम एक चीज समझ में नहीं आई, when we file refund application RFD 01, तो अभी what officer has right to reject on saying we have not received a document? So which document they are talking about? They have issued defect memo and cleared their standings. I just come to you, sir. Your issue is कि आपको RFD 03 इशू किया, that deficiency memo DM लगा दिया कि आपके documentation complete नहीं थे, तो आपको कौन से document लगाने हैं? This is what you want to ask? Actually, I have applied same refund application twice. Once they have issued defect memo, then I thought they should come up for a clarification what they want. Actually, my question is that, or should we go and meet them? जब वो DM लगाते हैं, तो they particularly mention in that कि आपके ये documentation missing है. अभी मैं आपको process बताती हूँ और मैं documentation भी बताती हूँ कि कौन सी है. Just give me 2 minutes. जब हम आगे process पे जाते हैं, then I take up your question. All right? चलिए, moving ahead. Friends, next change. Here it is. You can see it right now. सबसे पहले हम RFD 01 फाइल करते हैं. RFD 01 फाइल करते हैं, सर आपको डेफिशिएंसी मेमो इशू होता है और सर डेफिशिएंसी मेमो में लिखा होता है कि आपके ये डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट है और आप दोबारा से एप्लीकेशन लगाते हैं जो एक फ्रेश एप्लीकेशन होती है, रीसबमिशन, पुरानी से कोई लिंक नहीं है. आपने दोबारा एप्लीकेशन लगाई, इस बार उसको लगता है डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, वो आपको RFD 02 इशू कर देते हैं. 7 days में वो आपको अगर तो एक्सपोर्ट का रिफंड है, प्रोविजनल रिफंड देता है. इसके बाद सर आपका प्रोसेस शुरू होता है चेकिंग होने का. पहले तो उसने सिर्फ ये कहा था डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है या नहीं है, फिर वो आपको बताता है कि रिफंड में मुझे ये दिक्कतें हैं, SCN इशू करते हैं RFD 08. आप उसका रिप्लाई देते हो within a period of 15 days and then the refund order is issued. And is then there any the requirement to meet the officer? Because sorry, is there any requirement to meet the officer after filing the application? Because he denied on a defect memo saying no documentation was provided. Ritesh ji, this session is getting recorded. So practically saying, not practically, legally saying there is no requirement to meet any officer, but practically saying you need to follow up with them. Ritesh ji, I hope you got the answer. Yes, ma'am. Yes, I understood. All right. Chaliye. So practically there is no requirement. Legally there is no requirement. Deficiency memo will be issued. You will file a refund application again, removing the deficiencies which the officer raised. Then he will issue you the acknowledgement. Any issue you can talk. But sometimes, sir, practically they ask you
कई बार तो सर वो मैनुअली, जैसे कुछ हमारे रिफंड्स के केस में विच आर द बिगर रिफंड्स, जो 2-3 करोड़ 5 करोड़ के रिफंड्स होते हैं, दे समटाइम्स सेज कि आप हमें ना एक मैनुअल कॉपी भी दे दीजिए डॉक्यूमेंट की ऑफ द रिकॉर्ड। सो वी समटाइम्स प्रोवाइड देम, क्योंकि चेक करना इजी हो जाता है, कुछ क्लैरिफिकेशंस आपसे पूछनी है, सो दे कैन डू दैट, बट अदरवाइज देयर इज नो रिक्वायरमेंट एज सच टू मीट देम और फॉलो अप देम, राइट। चलिए, all right Rohit ji, absolutely correct, same like rule supersedes the law sir, many laws goes here in the country sir। चलिए, anyhow bank validation important point friends, जब भी आप रिफंड अप्लाई करते हैं प्लीज अपने चेक कर लीजिए कि जब आपने एप्लीकेशन लगाई थी उसमें आपने बैंक कौन से दिए थे, क्योंकि अगर वो बैंक वैलिडेट नहीं होगा then in that case आपको PFMS से रिफंड नहीं आता और आपकी एप्लीकेशन हेल्ड ऑन हो जाती है। रितेश जी, at the end of the session I will also show you the list कि आपको किस कैटेगरी में कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं और कौन से लगाने हैं। आई विल शो यू द स्लाइड फॉर दैट। नाउ वी आर कमिंग टू द मेन टॉपिक विद सर्टेन प्रैक्टिकल एग्जांपल्स इन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको पहले ही बताया, इनपुट का रेट आउटपुट के रेट से ग्रेटर देन होना चाहिए। किसका रिफंड देंगे? ओनली इनपुट्स का। द मैटर इज ऑलरेडी pending before the honorable apex court for the judgment to be delivered। capital goods और input services का रिफंड नहीं मिलता इस कैटेगरी। जब इशू अरोज हुआ, अब देखिए यहाँ पे भी रोहित जी आपका जो सर्कुलर 135 है ये सुपरसीड कर रहा है अपनी पावर को। आप लोगों ने मेरे साथ सेक्शन 54 पढ़ा, कहीं पर भी ये लिखा हुआ था कि भाई अगर आप ट्रेडर है, आप सेम प्रोडक्ट परचेज और सेल करते हैं, योर इनपुट एंड आउटपुट इज सेम, आपको रिफंड नहीं देंगे। नो वेयर इट वाज इन द एक्ट, नो इन द रूल्स, नो। सेकेंडली इफ आई से आप खुद ही रिफंड देते हो मर्चेंट ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन में कि आपने पीछे से 18% पे परचेज किया, आगे आपने 0.1% पे सेल किया, सो यू आर लायबल फॉर द रिफंड। And now your own circular is contradicting the point कि अगर आपका पहले आपने एक प्रोडक्ट परचेज किया 18% पे, उसका रेट रिड्यूस हो गया 12% पे, हम इसको नहीं देंगे रिफंड। क्यों? दिस इज ओनली अ रिडक्शन ऑफ रेट, ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर नहीं, हम आपको रिफंड अलाउड नहीं करें। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस सर्कुलर for now or in the times to come will and have to be quashed because this is not a valid provision। सर, यही कारण था कि गवर्नमेंट को जब कहा गया कि आप वैक्सीन का रेट कम कर दीजिए, उन्होंने बोला रेट कम करने से बेनिफिट नहीं होगा। क्यों? वैक्सीन की ट्रेडिंग होगी, और जहां ट्रेडिंग होगी सर्कुलर 135 विल कम इनटू पिक्चर और वो बोलेगा मैं रिफंड नहीं दूंगा। तो एज अ रिजल्ट कोई भी बेनिफिट कॉमन मैन तक नहीं पहुंच पाएगा। बट दिस इज अ प्रोविजन which is not acceptable, which is not the part of the act or the rules, only through the circular the same has been brought into effect। Now let me come to the formula for the refund। friends, अगर मैं formula की बात करूं, in that case बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, कॉमन सेंस, टर्नओवर की रेशियो करनी है। कैसे? अगर तो मैं कहती हूँ मेरी सारी सेल ही इन्वर्टेड ड्यूटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका मतलब मेरा पूरा रिफंड, बट उसमें से जो मैंने यूटिलाइज कर लिया वो तो माइनस कर दो। पहले हम एग्जांपल से चलते, फॉर्मूला फिर समझेंगे क्या। अब रोहित जी के क्लाइंट ने इनपुट दिए और इनपुट्स का आईटीसी बन गया। यू प्लीज Achal ji, kindly unmute yourself. Right, thank you so much. Now friends, inputs का ITC 18,000 I request everyone not to unmute themselves unless and required. Ma'am, kindly unmute. फ्रेंड्स, आईटीसी ऑफ इनपुट्स था 18,000। ये पर्सन कहते हैं मैं तो सारी एक्सपोर्ट ही करता हूँ। अब जब एक्सपोर्ट या इन्वर्टेड ड्यूटी में ही है मेरी सारी से, टर्नओवर थी 1 लाख, आउटपुट बना 5,000,
18% पे परचेज की या जिस भी रेट पे परचेज की, 12% पे की, 18,000 का इनपुट पड़ा था, आउटपुट बना 5,000, क्या करेगा? 18 का इनपुट 5,000 यूज कर लेगा और 12,000 13,000 उसके क्रेडिट लेजर में पड़ा रहेगा। 13,000 उसके क्रेडिट लेजर में पड़ा रहेगा। अब अगर ये पर्सन सोचे मेरा कितना इनपुट इन्वर्टेड ड्यूटी का है, हाउ मच इनपुट इज pertains to inverted duty structure, what he will do? He will say 18,000 मैंने टोटल इनपुट लिया, डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय इन्वर्टेड टर्नओवर। अब इस केस में क्या था? इन्वर्टेड टर्नओवर पूरी थी, इतना इनपुट बनता था इन्वर्टेड का, उसमें से मैंने इन्वर्टेड के लिए ही 5,000 यूज कर लिया, तो 13,000 का रिफंड मुझे मिल जाना चाहिए। फॉर्मूला भी तो यही कहता है, जितना मंथ में इनपुट अवेल किया ले लीजिए, पर सिर्फ इनपुट्स का। क्यों? अरे पहले से ही तो डिस्प्यूटेड है, ना कैपिटल गुड्स देंगे ना इनपुट सर्विस देंगे। ओके, रेशो में बांट दो। इनपुट इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के हिस्से में कितना आईटीसी आया? लेट्स सपोज 18,000 पूरा आया, उसमें से जितना यूज कर लिया किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टेड के लिए, उतना माइनस कर दीजिए, बाकी जो बचा रिफंड ले लीजिए, मैक्सिमम निकलता है। अब सुनिए, इस केस में पर्सन कहता है ठीक है मैंने 13,000 का रिफंड लेना है, अगले महीने में आया, अगले महीने में कोई परचेज नहीं की, सिर्फ सेल थी, यूज कर लिया और यूज कर लिया और यूज कर लिया, तो लॉ ने कहा रुक जाओ, मैक्सिमम रिफंड 13,000 निकलता था, लेकिन आप उसके बाद यूज करते जा रहे हो, तो मुझे क्रेडिट लेजर बैलेंस भी तो देखने दो, आज की डेट में है कितना? आप मेरे से 13,000 रिफंड मांग रहे हो और क्रेडिट लेजर में पड़ा है सिर्फ 5,000 या 6,000, बाकी तो आप यूज कर गए हो। सो इसीलिए इसके ऊपर लगाए 2 चेक्स और, जो मैक्सिमम बैलेंस है उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितना पैसा पड़ा है एट द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड, और जब आप एप्लीकेशन लगा रहे हो उस टाइम पे ऐसी दिखती है विंडो, यहां पे फॉर्मूला लगा होता है, यहां से मैक्सिमम रिफंड अमाउंट निकलता है, फिर सेकंड विंडो में जो क्रेडिट लेजर बैलेंसेस होते हैं आज की डेट पे जितना रह गया और जब जिस पीरियड की एप्लीकेशन है, दोनों में से तीनों में से the least amount is given as the refund। क्यों? जितना यूज कर लिया वो थोड़ी दे देंगे, वो तो आप यूज कर चुके हो, उसका रिफंड देके क्या दोबारा टैक्स मांगेंगे? नॉट पॉसिबल। अब सर जो ऊपर हमने ये मैक्सिमम का फॉर्मूला किया है ना, ये हेडवाइज टैक्स नहीं बताता, ये देखिए ये मैक्सिमम का जो फॉर्मूला है ये तो मुझे टोटल बता देता है, बट जब कंपैरिजन करना है तो हेडवाइज करना है। डिवाइड कैसे करें? डिवाइड करने का वे उन्होंने कहा सबसे पहले आईजीएसटी में से, और जितना बच जाए सी और एस में से इक्वली, और अगर सी नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर सारा एस में से ले, और अगर एस भी नहीं है तो फिर रिफंड नहीं मिलेगा, लीस्ट अमाउंट का रिफंड मिलेगा। हैव अ लुक ऑन द एग्जांपल। पर्सन ने कैलकुलेट किया एज पर फॉर्मूला 50,000 के रिफंड के लिए वो एलिजिबल था, बैलेंस एट द एंड ऑफ रिफंड पीरियड रह गया 30, फिर और आज रिफंड एप्लीकेशन पे टाइम पे 28। अरे भाई तुम तो 20,000 यूज कर गए और उसके बाद 2,000 और यूज कर गए, सो व्हाट विल बी योर एलिजिबल रिफंड? 28। कैसे निकालूं? अब ये 28 तो टोटल निकल आया, सबसे पहले आईजीएसटी में से, और जो बैलेंस बचे वो दोनों में से इक्वल। अब जहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, और कई बार तो डिपार्टमेंट भी बहुत प्रॉब्लम करता है, क्या? प्रैक्टिकली सारी एग्जांपल्स के साथ बता रही हूं, लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। पर्सन कंसर्न मैत्री त्रिवेदी जी के पास एक क्लाइंट आता है, बोलते हैं सर मेरी 2 इनपुट्स, इनपुट ए और इनपुट बी। इनपुट ए 5% की है, इनपुट बी 18% की है, और आउटपुट वाई। अब देखिए मैंने ट्रेडिंग नहीं दिखाई, मैंने मैन्युफैक्चरिंग दिखाई है, मैंने आउटपुट वाई क्रिएट किया है। आउटपुट वाई जो है वो बनता है 12% पे। तो ऑफिसर साहब कहते हैं कि ऐसा है, हम तो सिर्फ इनपुट बी लेंगे, इनपुट ए नहीं लेंगे। आंसर इज नो, नो। एक बार आप इन्वर्टेड में आ गए, यस,
रेट ऑफ इनपुट इज हायर देन रेट ऑफ आउटपुट, फिर कोई डिस्टिंक्शन नहीं करना कौन सा इनपुट और कौन सा नहीं, फिर तो टोटल नेट आईटीसी लेना है, इसका 25B और इसका 360 और फॉर्मूला लगाना है। कई बार डिपार्टमेंट कहता है मैं इनपुट ए नहीं लूंगा, क्यों? इनपुट ए इन्वर्टेड नहीं है। द आंसर इज नो। गवर्नमेंट का अपना सर्कुलर का पैरा 54 क्लियर कट मेंशंस all the net ITC on all the inputs is to be taken. All right. Now, अब एक ये इश्यू तो क्लियर हो गया। अब देखिए, सोचिए हुआ क्या। उसने 25 इनपुट में डाले, 360 इनपुट में डाले, टोटल हो गए 385, आउटपुट था 360, उसने 360 उसको यूटिलाइज कर लिया और नेट 25 रुपीज अभी मेरे क्रेडिट लेजर में पड़े हुए हैं, are still lying in the credit ledger. यही हुआ होगा। अब जब यही हुआ होगा तो जब ये पर्सन का रिफंड अप्लाई करने लगे, फॉर्मूला लगाते हैं नेट आईटीसी 385 डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर और इन्वर्टेड टर्नओवर तो सेम है। टोटल टर्नओवर इज 3000, इन्वर्टेड इज 3000 माइनस टैक्स पेड ऑन इन्वर्टेड इज 360. द आंसर कम्स आउट टू बी 25. पूरा का पूरा रिफंड मिल जाएगा. दिस इज द मैक्सिमम रिफंड अमाउंट थ्रू द फॉर्मूला. सेकेंड केस, अब ध्यान से देखिएगा. इनपुट का रेट 12%, आउटपुट का रेट 12%. सर इनपुट सर्विस का रेट है 18%. डज नॉट मैटर. इनपुट, अरे ये तो डेफिनेशन ही कहती थी. आईडीएस कब मानूंगा? रेट ऑफ इनपुट is less than rate of output. Only inputs. This is not a credit accumulation. होगा इसमें भी 60 रुपीज का क्रेडिट accumulation है, but refund eligible नहीं है because this is not a case of inverted. I hope this point is clear to everyone. This is not a case of inverted duty structure. Input service को consider नहीं करना है. Absolutely. चलिए, let's move ahead to the third point. अभी तक तो हम assume कर रहे थे भाई सारी inputs सारी की सारी inverted duty की है. Now if I say don't assume. Let's suppose person की output दो तरह की है, inverted duty भी और trading भी है. The person is into manufacturing as well as trading purposes. In that case, कुछ लोग क्या करते हैं सर, एप्लीकेशन लगाते हैं सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लेकर, बोलते ट्रेडिंग तो एलिजिबल है. द आंसर इज नो. आपको पूरी एंटिटी का, पूरे जीएसटीएन नंबर का नेट आईटीसी लेना है और पूरी एंटिटी की टर्नओवर लेनी है, पूरी 8100. पूरा इनपुट 1 2 3 985 रुपीज. क्यों? अगर आप ऐसा नहीं करते आपका एवरेज इंपैक्ट मिसमैच और इम्बैलेंस्ड हो जाए. देखिए, अगर आपके आई शो यू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. अब आप यहां देखिए, अगर पर्सन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग लेके चलेगा ना, उसको 25 रुपीज का रिफंड निकल आएगा. क्यों? इनपुट 385, आउटपुट 360, 25 रुपए बैलेंस बचा, 25 का रिफंड निकल आएगा. अब मैं दिखाती हूँ पूरी एंटिटी से क्या होगा. नेट आईटीसी 985 डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर 8100 मल्टीप्लाई बाय इन्वर्टेड ड्यूटी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग, मल्टीप्लाई बाय 3000 माइनस टैक्स ओनली ऑन इन्वर्टेड ड्यूटी, आउटपुट 360 रुपीज. 360 रुपीज. एज अ रिजल्ट आपका मैक्सिमम एलिजिबल अमाउंट आया सिर्फ 4 रुपीज 81. क्यों आया पता है? 25 रुपए से कम होके क्यों हो गया? एनीबडी यू कैन टेल मी? वेरी सिंपल लॉजिक, मैथमेटिक्स, एवरेज इफेक्ट. क्योंकि आपकी ट्रेडिंग ज्यादा थी 5100. ट्रेडिंग आपकी इनपुट ले गई किसका? आपके रिफंड का.
सो अगर आपने कहीं गलती से एप्लीकेशन लगा दी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग लेकर और रिफंड ज्यादा ले लिया, यू कैन बी लायबल फॉर पीनल एक्शन, यू कैन बी लायबल फॉर इंटरेस्ट. सो प्लीज भी. और अगर उल्टा होता, अगर मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा और ट्रेडिंग कम होती, आपका रिफंड बढ़ जाता. और अगर आप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग लेके लगाओगे, रिफंड कम हो जाएगा. सो प्लीज, बहुत सारे एप्लीकेशंस में हमने ये मिस्टेक देखी है. बहुत सारे ऑफिसर्स ये कहते हैं ट्रेडिंग का तो हम देंगे ही नहीं, उसको बाहर कर दो. अरे बाहर करना है मल्टीप्लायर में, फॉर्मूला तो कहते हैं टोटल टर्नओवर, टोटल इनपुट, वहां बाहर नहीं करना है. दिस इज हाउ यू हैव टू एक्चुअली अप्लाई द फॉर्मूला इन केस देयर आर मिक्स्ड टर्नओवर्स. इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीवन? किसी को इस इश्यू में कोई डाउट? मैं इस पे आऊंगी. नेक्स्ट स्लाइड जो है इन्वर्टेड ड्यूटी और एक्सपोर्ट्स. और सर जीएसटी में कोई ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, कुछ नहीं है. वॉट एवर इज देयर इन द P&L ऑल्सो, किसी के पैकिंग मटेरियल का ही रेट 28% है, इन्वर्टेड ड्यूटी. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का है, इन्वर्टेड ड्यूटी. डज नॉट मैटर कि वो ट्रेडिंग की आइटम है या वो P&L की आइटम. सर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की मैं बात करूं, विद पेमेंट ऑफ टैक्स, बिल्कुल ऑटोमेटिक रिफंड है. शिपिंग बिल इज द डीम्ड एप्लीकेशन. विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स में सेम फॉर्मूला है, बस माइनस नहीं होना. क्यों? टैक्स पे ही नहीं करते, तो माइनस क्या करूं? जीरो रेटेड डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय नेट आईटीसी. सो जस्ट गिव मी अ व्हाइल. So sorry, there was an urgent call, so I was supposed to take it. Anyhow, friends, अगर मैं बात करूं इस फॉर्मूले में, सेम फॉर्मूला है, बस माइनस नहीं होना, बिकॉज नथिंग इज टू बी पेड. अब इसमें इश्यू क्या होता है? चलिए एक बात बताइए, अपनी मर्जी से लगा लेते हैं कि विद पेमेंट में जाए कि विदाउट पेमेंट में जाए, और देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक थिंग्स व्हिच यू से, अच्छा विद पेमेंट में जाना है ये चीज चेक कर रही है और विदाउट पेमेंट में जाना है ये चीज चेक कर रही है. इज देयर एनी वे आउट? एनीबॉडी यू पीपल फाइल द रिफंड्स. तो क्या देखते हो, कैसे क्लाइंट को एडवाइस करते हो? क्लाइंट आपके, आई एम योर क्लाइंट, आई आस्क यू कि मुझे बताइए मैं विद पेमेंट ऑफ टैक्स कैटेगरी में जाऊं या विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स कैटेगरी में जाऊं. व्हाट आर द क्राइटेरियाज व्हिच नीड्स टू बी कंसीडर्ड? फ्रेंड्स, देयर आर नंबर ऑफ क्राइटेरियाज. फर्स्ट, सबसे पहले, अगर तो आपके पास, मैं इस पे 1 मिनट के लिए, फर्स्ट केस, अगर आपकी उस मंथ में कैपिटल गुड्स परचेज्ड है तो आपको विद पेमेंट ऑफ टैक्स में जाना चाहिए. कारण, और यू नो, जब ये विद पेमेंट ऑफ टैक्स खत्म हो जाएगा, सबसे बड़ा ड्रॉबैक होगा कैपिटल गुड्स का रिफंड नहीं मिलेगा. आई गिव यू एन एग्जांपल. अब देखिए यहाँ पे इस पर्सन ने 1 लाख के गुड्स एक्सपोर्ट किए, 1 लाख रुपीज, 12% रेट था, 12,000. अगर ये विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, और इनपुट भी था, इनपुट टोटल था 10,000 का, CGST, SGST, IGST, इनपुट्स पे, इनपुट सर्विस पे और कैपिटल गुड्स पे. कैपिटल गुड्स का रिफंड इनपुट कितना था? 5,000. अब अगर ये जाता है विद पेमेंट, तो विद पेमेंट का तो रूल सिंपल है, जो पे किया कितना रिफंड मिलेगा? विद पेमेंट में 12,000. जो पे किया, क्या किया होगा इसने? 10,000 इनपुट पड़ा था, 12,000 आउटपुट था, एडजस्ट किया होगा, 2,000 हाथ से पे किया होगा और पूरा 12,000 का रिफंड ले लिया होगा. ऑलराइट. सेकंड केस, अगर ये विदाउट पेमेंट में जाता, देखिए यही पर्सन, फॉर्मूला क्या कहता है? नेट आईटीसी. किसका लेना? इनपुट और इनपुट सर्विस का. कहता ठीक है 5,000, सारा का सारा ही एक्सपोर्ट टर्नओवर है, पूरा रिफंड मिल जाएगा. कितना रिफंड? 5,000. सेकंड केस में रिफंड इज 12,000. कैपिटल गुड्स का इनपुट भी एंड कैश हो गया. विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स कैटेगरी में कैपिटल गुड्स का इनपुट एंड कैश नहीं होता है. सो व्हेनेवर यू हैव कैपिटल गुड्स, यूज द ऑप्शन विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स. सेकंड,
सेकेंड, अगर मैं बात करूं, अगर आपके इनपुट्स में सेस है, सी दीज आर इनपुट्स, आपको सेस लग के आ रहा है इनपुट्स के ऊपर, ऑलवेज यूज विदाउट पेमेंट। कारण, अब इस पर्सन ने एक्सपोर्ट की, 5,000 का टैक्स लगा, विद पेमेंट में कितना रिफंड लेगा? 5,000। क्यों? आउटपुट में तो सेस है ही नहीं। और यही पर्सन अगर विदाउट पेमेंट में जाएगा, पूरे इनपुट्स का रिफंड, पूरा इनपुट कितना है? 6,500। जब भी सेस होता है, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स इज अ बेटर ऑप्शन। थर्ड केस, जब आपके अंदर स्टॉक पड़ा हुआ हो, स्टॉक हेल्ड इनसाइड। अब देखो, इस पर्सन ने ह्यूज परचेजेस, ह्यूज 32,000 का इनपुट मिल गया, और अभी एक्सपोर्ट ना सिर्फ 1 लाख की, ओनली 1,05,000 रुपीज के हिसाब से। इन दैट केस अगर ये विद पेमेंट में जाएगा, सिर्फ 5,000 का रिफंड, और अगर विदाउट पेमेंट में जाएगा, पूरे 32,000 का रिफंड। सर, इस फॉर्मूला में एक ड्रॉबैक है, ये स्टॉक हेल्ड इनसाइड का कुछ भी कंसिडर नहीं करता। एज रिजल्ट, अगर आपकी परचेजेस हायर है और एक्सपोर्ट कम हुई है, ऑलवेज यूज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स ऑप्शन। एक्सपोर्ट्स में माय डियर फ्रेंड, एक प्रोविजन गवर्नमेंट ने अमेंड किया है, एंड व्हाट इज दैट अमेंडेड प्रोविजन? पहले क्या होता था, जितनी आप सप्लाई करते थे, मैं एग्जांपल लेती हूँ राइस की, राइस, मेरे क्लाइंट राइस एक्सपोर्ट करते हैं। अब सर, जो बासमती इंडिया में मिलता है, लोकल जाता है, उसमें कोई टेस्टिंग नहीं है। Very sorry to say, when I say that, it really hurts me, because what we are eating, whether it contains pesticides or that, this and that, doesn't matter. The supply is going on. When the same rice is to be exported to UK, USA, other countries, a number of tests required. सर्टिफिकेशन, अगर उसमें एक ट्रेस भी मिल जाता है ना पेस्टिसाइड्स का, entire sample, entire delivery, entire consignment goes waste. Now, जो क्लाइंट वही राइस इंडिया में 5,250 रुपए, 5,250 रुपीज पर क्विंटल सेल करता है पर 100 kg, वही राइस इंडिया से बाहर 8,000 में जाता है, जाएगा। अरे, पर्सन के बाहर आने जाने का खर्चा, टेस्टिंग का एक्सपेंडिचर, सारी लोडिंग्स तो ऐड होनी है, सो इट इज जेन्युइन। उसकी टोटल सेल बनती थी 9 लाख। फॉर्मूला लगाते थे, 1 लाख का आईटीसी डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर, और रिफंड निकल आता था 88,000। लॉ चेंज कर दिया और सर्कुलर ने बोला, लुक नाउ योर zero rated export turnover cannot be more than 1.5 times of the domestic sale. इसका मतलब 5,250 रुपए पर क्विंटल का राइस 1.5 गुना यानी 7,875 पर ही सेल हो सकता है, 8,036 पर नहीं, फॉर द रिफंड पर्पसेस। उन्होंने कहा अब हम आपकी एक्सपोर्ट मानेंगे 7,875, डोमेस्टिक तो उतनी रही, टोटल हो गया इतना, फॉर्मूला लगाया और रिफंड निकल आया 88,235, रिडक्शन इन रिफंड। सो ऑल्दो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिया है टू कैच सर्टेन बैड फिशेस जो एक्सपोर्ट्स की वैल्यू इन्फ्लेट करती थी, बट द जेन्युइन, दिस इज द एक्चुअल फिगर्स माय डियर फ्रेंड्स दैट आई हैव कोटेड हियर फॉर माय क्लाइंट्स। वो एक्चुअली 8,036 पे बेचता है क्योंकि वो कहता है मुझे लोडिंग बहुत पड़ती है। और कई बार ये क्वेश्चन आता है, अगर मैं डोमेस्टिकली बेचता ही नहीं, देन लाइक सप्लायर का ले लूं, बट जो चीज डोमेस्टिक में जिस रेट पे सेल होती है, आप उसके 1.5 टाइम्स से ज्यादा कंसिडर नहीं कर सकते। दिस इज द अमेंडेड प्रोविजन। फ्रेंड्स, ऑल्दो माय टॉपिक वाज रिफंड्स, बट मैंने कुछ एक्सपोर्ट के प्रोविजंस भी इसमें डाले। लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर क्या होता है, शिपिंग बिल क्या होता है। अच्छा चलिए, एक दो केस स्टडीज डिस्कस करती हूँ आपके साथ, यू विल एंजॉय दैट। मिस्टर ए है कनाडा के, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू राइट इन द चैट बॉक्स एंड देन वी विल टेक। अच्छा रुचिका जी,
और रितेश जी ने क्वेश्चन पूछा, मैंने बोलना भी था, आई जस्ट आंसर दैट। सर आपने LUT ली हुई है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप विद पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं कर सकते। आपकी मर्जी है रुचिका जी, रितेश जी, एक कंसाइनमेंट विद पेमेंट, दूसरा विदाउट पेमेंट, तीसरा फिर विद पेमेंट। आप हर कंसाइनमेंट इंडिविजुअली डील कर सकते हैं, विद पेमेंट और विदाउट पेमेंट, चाहे आपके पास LUT है या नहीं है। इट इज इंटरचेंजेबल एज पर योर चॉइस रितेश जी। आई होप द पॉइंट स्टैंड्स क्लियर। चलिए मूविंग अहेड। सिर्फ अभी तक एक वो बिग सी क्वेरी थी, वो मैंने डील नहीं की है। रेस्ट आई एम टेकिंग द क्वेरी साइमल्टेनियसली। जो और आएंगी वो तो डेफिनेटली आई विल टेक अप। अब सुनिएगा जरा ध्यान से। मिस्टर ए कनाडा में बैठे थे, मिस्टर बी केरला में, मुंबई कर लेते हैं। इन्होंने कहा भाई एक काम करो, मिस्टर सी पंजाब में बैठे, आंचल मैडम को गिफ्ट भेज दो, भेज देना, ठीक है, गिफ्ट नहीं है, गुड्स है, चलो। अब मिस्टर ए ऑफ कनाडा, मिस्टर बी ऑफ केरला, मिस्टर सी ऑफ पंजाब, वेदर इट इज एक्सपोर्ट यस और नो? क्या जो मिस्टर ए गेव ऑर्डर टू मिस्टर बी फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स टू मिस्टर सी, सो A टू B जो ट्रांजेक्शन हुई, वेदर इज इट एक्सपोर्ट यस और नो? एब्सोल्युटली राइट रुचिका जी, नो। रोहित जी नो, आशुतोष जी नो। रीजन, the goods must leave India. Goods are taken out of India. So build to ship to model, invoice चाहे by B to A जाएगा, but the goods are still in India from Kerala to Punjab. It is not an export. ये export नहीं है। Export की एक condition है that the goods must leave India. Right? मैंने पहले ही बताया आशुतोष जी, अगर आप 100% एक्सपोर्ट में है तो लाइक सप्लायर का प्राइस, लाइक। बट आशुतोष जी ये भी बता दूं, मशीनरी मैकेनिज्म नहीं दिया गया, सिर्फ एक रूल बना दिया गया, एक अमेंडमेंट कर दी गई, लाइक सप्लायर का उठा लेना। बट मैं कहती हूँ जी मेरी बासमती की क्वालिटी और उसकी बासमती की क्वालिटी नहीं मैच करती, सो मैकेनिज्म इज मिसिंग। डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग भी इसीलिए फेल हुआ था, देयर वाज नो प्रॉपर, वहां तो फिर भी मशीनरी मैकेनिज्म था, यहाँ तो मशीनरी प्रोविजन ही प्रॉपर्ली एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन डिपार्टमेंट आजकल चेक करता है, उसके पास 10 केस आते हैं शेलर के, वो कहता है आपका रेट ज्यादा, राइट? त्रिवेदी जी, देयर इज नो टाइम लिमिट टू क्लेम द इंटरेस्ट ऑन द रिफंड। आपका जब रिफंड आ रहा है, अगर वो 60 डेज से बियॉन्ड है तो आप उसकी एप्लीकेशन लगा दीजिए, आपको रिफंड सैंक्शन हो जाएगा। ऑलराइट, सेकंड केस स्टडी। मिस्टर ए ने ऑर्डर दिया मिस्टर बी को सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए, और उसने कहा कि मिस्टर बी वो अपने पास ही रख लो, मोल्ड्स है, तुमने काम करना है तो मोल्ड्स रख लो। टेल मी वेदर इट इज export from Mr. A to Mr. B, yes or no? You're welcome. जल्दी से no. Again, the goods are not leaving India. It is not an export. Friends, there are a number of examples. कई बार क्या होता है, हम गुड्स बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, रिटर्न आ जाते हैं। मुझसे कुछ लोग पूछते हैं क्या हमें क्रेडिट नोट इशू करना है? बिल्कुल करना है। क्या वापसी आने पे ड्यूटी पेबल होती है? नो, इट इज द एक्सपोर्ट रिटर्न। जिस शिपिंग बिल पे जाएगा उसी पे रिटर्न जो है वो कंसिडर हो जाएगा। देयर आर लॉट्स ऑफ केस स्टडीज, इवन मैंने इस पीपीटी में एरर्स भी डाले हैं कि कुछ एरर्स जो आपको आते हैं, हाउ टू डील विद दैट। अदर देन दैट, ये अमेंडमेंट पे जाने से पहले एक प्रोविजन में और डिस्कस करना चाहूंगी। कई बार क्या होता है, पर्सन के दोनों रिफंड्स आ जाते हैं। दोनों मतलब मैंने जो एक स्लाइड छोड़ी थी, एंड आई टोल्ड यू दैट आई विल कम टू इट, वो मैंने डेलिबरेटली छोड़ी थी। दो एप्लीकेशनें इकट्ठी जा सकती है इन्वर्टेड ड्यूटी में और एक्सपोर्ट में। एग्जांपल समझिएगा, एक पर्सन एक्सपोर्ट करता है, रितेश जी आती हूँ, हाई सीज पे आती हूँ, इट इज द पार्ट ऑफ द पीपीटी, आई शेयर हाई सीज विद यू। इन्वर्टेड ड्यूटी पे आते हैं, इन्वर्टेड ड्यूटी भी और एक्सपोर्ट भी है, सेम इनवॉइस। मतलब अरे भाई मैंने मार्केट से परचेज की 18% पे और उसको एक्सपोर्ट कर दिया और एक्सपोर्ट का रेट था 10%। एग्जाम्पल, परचेज 18%, सेल 10%, इन्वर्टेड ड्यूटी तो है। अदर देन दैट एक्सपोर्ट भी है क्योंकि एक्सपोर्ट सेल है। अब वो पर्सन कहते हैं सर मैं क्या करूं, दो एप्लीकेशनें लगाऊं, इन्वर्टेड ड्यूटी अलग से, एक्सपोर्ट अलग से।
क्या करूं, विद पेमेंट में जाऊं विदाउट पेमेंट? सर, whenever there is inverted duty plus exports on same invoice, always use without payment tax method. Have a look why. अब देखिए, अगर ये पर्सन विद पेमेंट ऑफ टैक्स में जाएगा, रिफंड कितना मिलेगा? ये 12 रुपीज। और यही पर्सन अगर विदाउट पेमेंट, एक ही एप्लीकेशन विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर एक्सपोर्ट कैटेगरी, जितना इनपुट है सारा रिफंड 18%। 2 एप्लीकेशंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो व्हेनेवर, अगर आप इन्वर्टेड ड्यूटी, बहुत केसेस आते हैं सर ऐसे, मेरा इन्वर्टेड ड्यूटी भी और मैं एक्सपोर्ट भी कर रहा हूं, हम हमेशा क्लाइंट को कहते हैं डू इट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। विद पेमेंट ऑफ टैक्स इज अ लॉस ऑप्शन। ऑलराइट, चलिए नाउ मूविंग टू द पॉइंट, हाई सीज सर ने कहा है, चलिए हाई सीज डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले एक छोटा सा अमेंडमेंट बता दूं सर। आई थिंक सो, चाहिए हाई सीज नहीं, आई डिस्कस हाई सीज। अमेंडमेंट क्या हुई है सर? पहले एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सिर्फ और सिर्फ था टेकिंग द गुड्स आउट ऑफ इंडिया, फॉरेन करेंसी रियलाइजेशन का कोई पॉइंट नहीं था। अब उन्होंने पहले रूल इंसर्ट किया, रूल 96B, अब उन्होंने एक्ट बजट में अमेंड कर दिया और लिख दिया है फॉरेन एक्सचेंज आनी चाहिए गुड्स के केस में भी। सर्विसेज में तो पहले से ही था, सर्विसेज में तो रोहित जी मैंने विद एग्जाम्पल ही बताया था। एक सेकेंड, चलिए 1 मिनट, मैं आपके पॉइंट, मैंने विद एग्जाम्पल ही बताया था रोहित जी, हैव अ लुक। ये देखिए, I have to go back, just a minute। ये देखिए, मैंने आपको बताया इस केस में कि वो परचेज कर रहा है और सेल कर रहा है। हियर सर काइंडली अनम्यूट रोहित जी, क्योंकि अभी अभी टॉपिक डिस्कस हुआ है, तो लेट मी हियर व्हाट ही हैज एन इशू इन दैट। अब देखिए, इसमें भी परचेज हो रहा है और सेल हो रहा है, परचेज हो रहा है, सेल हो रहा है। जी मैम, सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन। नो प्लीज। आपने एग्जांपल बिल्कुल परफेक्टली दिया है। एक्चुअली होता कैसे है कि वी आर डूइंग द सेम काइंड, आई एम नॉट एंगेज्ड इन द जीएसटी प्रैक्टिस, बट मेनी ऑफ माय क्लाइंट इज एंगेज्ड इन दैट प्रैक्टिस। उनका बहुत सारा इन्वर्टेड ड्यूटी प्लस एक्सपोर्ट आता है। व्हाट देयर कंसल्टेंट इज डूइंग, दे आर डूइंग साइमल्टेनियसली 2 एप्लीकेशंस, वन इज इन्वर्टेड ड्यूटी और वन इज एक्सपोर्ट। सो हाउ इट इज एक्चुअली डिफरेंस कि मैकेनिज्म में कैसे उनको बेनिफिट होगा कि ये जो आपने एग्जांपल दिया कि 12 ही मिलेगा रिफंड, here he can the assessee can get the whole benefit of 18 rupees and another only 12 rupees. So why the differ is generated, like ऐसा क्यों होता है? Can you give me some idea about it? सर इस केस में आप ये कहना चाहते हो कि वो विद, मैं आपके वाले पे आ रही हूँ रोहित जी, आपकी एग्जांपल लेती हूँ। आप कहते हो मेरे पर्सन कंसर्न है, एंड अ वेरी वैलिड क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज हैव अ लुक। ये पर्सन ये कहता है कि ऐसा करो सर, 12 रुपए तो मुझे विद पेमेंट में दिलवा दो, और जो 6 रुपीज बचते हैं वो इन्वर्टेड ड्यूटी में दिलवा दो। से यस और नो सर, यही कहना चाहते हैं आप? Yes. राइट। अब सुनिए, जब आप 12 रुपीज वहां ले जाते हैं ना, और एक ही इनवॉइस के लिए आप 2 एप्लीकेशंस मूव कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स एंड, वो आपको क्या ऑब्जेक्शन रेज होता है कि आपने तो उधर मल्टीप्लायर में, सुनिए सर, आपकी एक प्रोवाइजो है अंडर सेक्शन 54 सबसेक्शन 3। रोहित जी प्लीज लिसन केयरफुली, और जिस भी पर्सन से आप डील करते हैं, टेल हिम सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 से जिस इनवॉइस पे आपने विद पेमेंट ऑफ टैक्स ले लिया, उसके लिए इनपुट्स के लिए आप उसको कंसिडर नहीं कर सकते फॉर एंटायर 54 सबसेक्शन 3। Ma'am, actually this is the only case where the inverted duty structure application is rejected. Sir, this is the case where the number of rejections have been made by department. That's why I asked this question with you. Sorry? That's why I asked this question with you. Yes, absolutely. The application was rejected. That is why I said, और सर अगर आपने ऊपर रीजनिंग पढ़ी होगी ना इसी स्लाइड में, ये देखिए मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, नो कैन द रिफंड एप्लीकेशन ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी एंड एक्सपोर्ट्स बी मेड साइमल्टेनियसली? आंसर इज नो। रीजन,
It cannot be applied simultaneously due to second proviso to section 54 subsection 3. So क्या होगा, वो प्रोवाइजो पिक्चर में आ जाएगी और वो आपको बोलेगा क्योंकि ये इनवॉइस आप विद पेमेंट में ले चुके हो, आप इसको मल्टीप्लायर विदाउट पेमेंट में अब ले ही नहीं सकते हो और आपका रिफंड 12 रुपए पे रिस्ट्रिक्ट होकर रह जाएगा. Yes, got it, madam. Got it? चलिए. Thank you so much. My pleasure. I hope the point is clear to everybody. Yes. What Rohit ji asked. Now friends, let me come to the point जो अमेंडमेंट में डिस्कस कर रही थी. सर पहले क्या था, गुड्स एक्सपोर्ट हो गए, गुड्स लीव इंडिया, वेल एंड गुड. नाउ सर्विसेज में तो पहले से ही कंडीशन थी फॉरेन एक्सचेंज आना चाहिए, लेकिन अब उन्होंने गुड्स, सर एक सर्विसेज तो मानी ही नहीं जाती है अगर आपका फॉरेन एक्सचेंज नहीं आता विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, और अगर 1 ईयर के बाद भी आ जाता है ना तो भी नहीं मानते सर्विसेज में, खत्म, फिनिश, नो रिफंड्स. लेकिन गुड्स के केस में उन्होंने प्रोविजन डाला 9 मंथ्स में अब फॉरेन एक्सचेंज आना चाहिए, हम रिफंड दे देंगे, लेकिन अगर 9 मंथ्स में फॉरेन एक्सचेंज नहीं आया रिफंड वापस ले लेंगे विद इंटरेस्ट. अच्छा फिर आ गया सर सर्विसेज में दोबारा आ गया, कुछ बेनिफिट नहीं. हाँ लेकिन गुड्स में अगर दोबारा आ गए पैसे, फॉरेन एक्सचेंज आ गया, 9 मंथ्स में नहीं आया, 15 मंथ्स के बाद आ गया, 18 मंथ्स के बाद आ गया, दोबारा रिफंड दे देंगे. सो गुड्स का क्या है, पहले रिफंड देंगे, 9 मंथ्स में पैसा नहीं आया विद इंटरेस्ट वापस ले लेंगे, फिर से पैसा आ गया फिर से रिफंड दे देंगे, लेकिन आपको इंटरेस्ट का लॉस हो जाता है. सो नाउ इवन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज लिंक्ड टू योर to the particularly to this point of refunds. These are certain examples कि डिपार्टमेंट अगर refunds provisionally देता है और कुछ क्रेडिट्स उसको लगते हैं एलिजिबल नहीं है. I have made certain examples, you can go through this. I have tried to cover. सर कई लोगों को SCZ में बड़ी दिक्कत आती है, SCZ की वर्किंग कैसे होती है. तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अ सिंगल स्लाइड जो SCZ का पूरा प्रोविजन कैरी करती है कि SCZ तुम अगर एक सप्लायर से लेकर SCZ कैसे एक चीज को डील करती है, सप्लायर जब उसको सप्लाई करता है और SCZ के आगे उसका क्या करता है, वो एक्सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि आपको पता है SCZ अब DTA को भी सप्लाई कर सकता है. दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव स्लाइड विच टॉक्स अबाउट सारा मैकेनिज्म SCZ में क्या होता है. मुझे भी इनिशियली SCZ का काम करने में इश्यू आता था, सो आई मेड दिस स्लाइड एंड दैट इज व्हाट आई हैव शेयर्ड विद यू ऑल. आइसगेट की लिंकेज होती है, वहां से इनवॉइस टैली होते हैं विद पेमेंट ऑफ टैक्स में. कैश लेजर का रिफंड आपको मिल जाता है अगर आपके कैश लेजर में एक्सेसिव पैसा पड़ा है, TCS TDS का पैसा क्रेडिट होके आया है, तो आपको उसका रिफंड मिल जाता है. अब सबसे पहले मैं मैंने रितेश जी आपको बोला था एट द एंड आई हैव गिवन द चार्ट किस कैटेगरी में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं. इसके अलावा आपसे और कोई भी डॉक्यूमेंट डिमांड नहीं किए जा सकते. देयर आर सर्टेन केस लॉ आल्सो. SCZ में ऑथराइज्ड ऑपरेशन होने चाहिए. कौन से ऑथराइज्ड ऑपरेशंस है उसकी लिस्ट भी मैंने यहाँ दी हुई है. रिफंड्स में एक अमेंडमेंट आई है, इसके बाद सर मैं हाई सीज ही कराऊंगी, बस जस्ट लेट मी फिनिश इट. How will GST department knows about forex realization? बैंक से सर्टिफिकेट मंगवाते हैं सर, from there they get to. Time limit for receipt of foreign exchange is encountered from which date? Sir, Madam Maitri Trivedi ji, I am really sorry if I am pronouncing something wrong as to your name or otherwise. Time limit for the receipt of foreign exchange is counted from which date? 9 months from as per FEMA. FEMA के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो आपके 9 मंथ्स हैं वो काउंट होने हैं from the date when you are exporting the goods. 9 months from the date of exporting the goods. Friends, एक बहुत वेलकम चेंज आया. जैसे रितेश जी ने कहा था कि वो एक एप्लीकेशन लगाते हैं, एप्लीकेशन में DM आ जाता है. अब रितेश जी के पास क्लाइंट ना लास्ट डेट में आया था, 10 दिन रह गए थे एक्सपायर होने में. 10 दिन जब एक्सपायर होने में रह गए थे तो इन्होंने रिफंड लगा दिया, उसने सामने से RFD 03 इशू कर दिया. रितेश जी कहते अब तो काम खत्म, अब तो काम खत्म. सो क्यों, अरे अब तो 10 दिन बचे थे, 15 दिन बाद DM लगा दिया, फ्रेश एप्लीकेशन लगाऊंगा भी तो टाइम बार्ड है.
गवर्नमेंट ने एक रिलीफ दिया है क्योंकि ये बहुत बड़ा मेस था। गवर्नमेंट कहती है रितेश जी कोई बात नहीं, 10 दिन 15 दिन बाद लगाया ना, मैक्सिमम 15 दिन के बाद ही लगा सकते हैं आपको, मैं मैक्सिमम 15 दिन, लेकिन अगर ऑफिसर ने 11 दिन बाद रिजेक्शन की है तो 11 डेज। सो टाइम टेकन बाय द ऑफिसर फॉर इशूइंग RFD 03 और मैक्सिमम 15 दिन ऐड हो जाएंगे, यानी उतना टाइम और मिल जाएगा। अब अगर रितेश जी एप्लीकेशन लगाएंगे 12 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, तो वो रिजेक्ट नहीं हो। दिस इज अ वेरी वेलकम चेंज। अब अगर आप एक एप्लीकेशन रिफंड की लगाते हो, वो गलत हो जाती है, ऑफिसर कहते हैं ये क्या कर दिया, मैं तो रिजेक्ट करनी ही पड़ेगी। तो पहले क्या होता था, ओ शिट रिजेक्ट, अब तो हम दोबारा उसमें हेड में लगा ही नहीं सकते। अब आपको ऑप्शन दे दी गई है, आप विड्रॉ कर सकते हो। वेरी वेलकम चेंज। विड्रॉ, आपको लगता हो ये तो गलती हो गई, विड्रॉ योर एप्लीकेशन, क्योंकि 1 मंथ की एप्लीकेशन एक ही बार लगती है, दोबारा नहीं लगती। अब रितेश जी ने कहा, इज इट अबाउट रियलाइजेशन और गेटिंग द FIRC कॉपी? यस रितेश जी, नॉर्मली FIRC कॉपी इज डिमांडेड इन केस ऑफ सर्विसेज, बट नाउ अ केस द डिपार्टमेंट इज आस्किंग कि आपको जो हमने रिफंड दिया था, जब आप सब्सिक्वेंट रिफंड्स के लिए जाते हो गुड्स के, तो आपको कहते हैं जो हमने आपको पहले रिफंड दिया था क्या उसकी प्रोसीड्स आ गई है? नहीं तो यू आर सपोज टू रीपे द अमाउंट। अभी डिपार्टमेंट इज नॉट दैट अवेयर ऑफ दिस प्रोविजन, तो ज्यादा चेकिंग नहीं करते हैं। आई एम कमिंग टू द प्रोविजन which sir asked me, high C sales। इसमें स्लाइड नहीं है रितेश जी हाई सी सेल्स की, बट मैं आपको जस्ट वैसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। Here you see, हाई सी सेल्स में क्या होता है, यूएसए में एक पर्सन बैठा था, यूएसए से गुड्स इंडिया आ रहे थे, और इंडिया कौन मंगवा रहा था? रितेश जी मंगवा रहे थे। अभी ये गुड्स कस्टम फ्रंटियर को क्रॉस नहीं किए थे। रितेश जी ने कहा ये गुड्स सेल कर दिए। किसे सेल कर दिए? रोहित जी को सेल कर दिए। रितेश जी ने ये गुड्स इंपोर्ट किए थे 1 लाख पे, इन्होंने 25,000 प्रॉफिट अर्न किया, 1,25,000 के गुड्स रितेश जी को सेल कर दिए। दिस इज अ हाई सी सेल ट्रांजैक्शन जो हुई है रितेश जी और रोहित जी के बीच में। जो 25,000 रुपए रितेश जी ने कमाए, 1,25,000 की सेल की है, इट इज आउट ऑफ द प्रीव्यू ऑफ GST। इट इज नॉट अ सप्लाई। GST किस पे लगेगा? जैसे ये गुड्स कस्टम फ्रंटियर पे पहुंचेंगे, इसे रोहित जी छुड़वाने जाएंगे और वैल्यूएशन कंसिडर होगी 1,25,000। जब गुड्स इंडिया आ रहे थे वो रितेश जी के नाम पे होंगे। डिपार्टमेंट बोलता है आप अपना सेल इनवॉइस दिखाइए जिसमें रितेश जी ने गुड्स रोहित जी को बेचे, वो 1,25,000 पे होंगे। 1,25,000 पे रोहित जी टैक्स पे कर देंगे, गवर्नमेंट को पूरा 1,25,000 पे IGST मिल जाएगा। रोहित जी विल स्टेप इनटू द शूज ऑफ इंपोर्टर। रितेश जी आपने जो सेल करी, जो प्रॉफिट अर्न करा, GST उसके ऊपर नहीं लगेगा। और मजे की बात, इसको एग्जेम्प्ट सप्लाई भी नहीं माना जाएगा, कोई रिवर्सल नहीं होना। आपको जी मैं आउटपुट पे टैक्स नहीं दे रहा हूँ 1,25,000 पे, इधर 1 लाख की परचेज, उधर 1,25,000 की सेल, कोई रिवर्सल भी नहीं करना होता। सेक्शन 17 में क्लियर कट लिखा है कि शेड्यूल 3 की सिर्फ एक ही सप्लाई है, सेल ऑफ लैंड, जिसको एग्जेम्प्ट सप्लाई में माना गया, लैंड एंड बिल्डिंग। अदरवाइज इनबाउंड सेल्स, मर्चेंट ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन, हाई सी सेल्स। मर्चेंट ट्रेडिंग क्या होती है? गुड्स रोहित जी को नहीं बेचे, किसी और को बेच दिए, आउटसाइड इंडिया, चाइना बेच दिए, बिफोर दे कुड क्रॉस द कस्टम फ्रंटियर। ऑल दीज ट्रांजैक्शन आर आउट ऑफ द प्रीव्यू ऑफ GST। ना आपको रिवर्सल करना है, ना आपको कोई रिफंड मिलेगा, ना आपको कोई टैक्स देगा। आई होप रितेश जी द पॉइंट इज क्लियर। इफ स्टिल देयर इज एनी इशू यू कैन आस्क। It is not treated as any turnover. No, it is not treated as any turnover in GST. It is not a supply. Neither supply of goods nor supply of services, not to consider for reversal also for 42-43. Okay. All right. Sir, any query? एक query थी जो बड़ी सी that I skipped, so you can just. Anyone who has query, kindly you can ask, unmute and ask one. In case Hello, मैं आचिम मैम। अंकित सेठिया जी की एक क्वेरी है
If he is there, so say him to unmute and directly ask. Gentlemen, Ankit is there? Sorry? Okay. Can I ask one question? Yeah, sure. Ma'am, is there any solution for time barred application in the COVID period? सर आपकी कोविड जो गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन दी थी उसके भी बाद है सर आप 2 year का पीरियड है मैडम. सर 2 years का पीरियड में भी जो गवर्नमेंट ने एड ऑन किया था दैट टाइम पीरियड हैज आल्सो क्रॉस्ड. Yes, in that period actually जब extension मिला था मैडम, my application was January 2019, but the application was not filed till January 2021. It was filed in February 2021. So 2 year was already expired in the month of March. रोहित जी डायरेक्टली टॉकिंग, आपको डिपार्टमेंट से किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. अगर आपको लगता है आपका जो केस है वो स्ट्रॉन्ग है, then only go for the writ petition if there is sufficient cause. सिर्फ रिट में बेनिफिट मिल सकता है, बट डिपार्टमेंट में चाहे आप अपील भी करेंगे, देयर आर रिमोट चांसेस कि आपको कोई एपिलेट अथॉरिटी से कोई भी बेनिफिट इसमें मिलेगा. ओनली रिट इज द रेमेडी विद द सफिशिएंट कॉज. और एक चीज ये भी बता दूं, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, स्यू मोटो ऑर्डर Yes. आया था जो, उसमें भी सर्कुलर के थ्रू गवर्नमेंट ने पर्टिकुलरली एक्सक्लूड किया है रिफंड ट्रांजैक्शंस को. सो आपको या तो वो सर्कुलर चैलेंज करना पड़ेगा कि भाई मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का बेनिफिट लेना चाहता हूँ. Okay. Because the amount is Writ quite is the sufficient. only remedy, sir. Writ Yes, is the yes, only. okay. Okay. Thank you. Ma'am, I have a question. Right. I can now hear your voice. Yeah, ma'am, how are you? Very fine. Yeah, please. Ma'am, actually, we are filing refund of cash ledger. Basically, we are filing refund from cash ledgers, but we are not getting any interest on any of the refund. मैत्री refund जी, receipts. सिर्फ कैश का छोड़िए, डिपार्टमेंट किसी पे भी इंटरेस्ट नहीं दे रहा. सो तभी मैंने कहा था जियान इंटरनेशनल का केस बहुत इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू फाइट फॉर इट. आपको उसका एप्लीकेशन देना पड़ेगा. दैट आई हैव इनकम टैक्स जैसा हिसाब नहीं है कि ऑटोमेटिक रिफंड आता है. अभी उसको ऑटोमेटिक होने में टाइम लगेगा. यू हैव टू गिव द एप्लीकेशन, कीप रिमाइंडिंग. हमने तो बहुत रिमाइंडर्स भी दिए हैं, बट स्टिल डिपार्टमेंट इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, एंड दैट इज द इशू देयर. Ma'am, how should we proceed? Like we have, there is any application or mail Yes, or how? ma'am, there is no as such proper application. आप अपने jurisdictional officer जिसके पास आपकी jurisdiction fall करती है, आप उसको letter दीजिए, case law cite कीजिए, and let him come up with the revert to that. Okay, ma'am. And ma'am, one more, just a request. Can we get that presentation slide when where you have mentioned the documents which we have to file for particular Ma'am, refund application? entire slides will be shared. I will share it with Okay. Ritesh ji for further forwarding it to all of you. Yes. Okay, thank you, My ma'am. pleasure. My pleasure. Everyone, you can unmute and ask the questions if you have. There is a question of Ashutosh Somani ji. On partial non-compliance of notification 40/2017, refunds be denied, like intimation not given to Ashutosh. jurisdictional officer of supplier. Like intimation not given to jurisdictional officer or supply. Is Ashutosh ji there? Like intimation not given to jurisdictional officer of supplier for export. He is asking Yes, about. Ashutosh ji, this is one of the conditions therein. और अगर lapse है, so it depends that how the person concerned is dealing with it. But yes, there are certain conditions which are attached to notification 40/17, like without payment में होना चाहिए, with payment में नहीं हो सकता. Intimation देना जरूरी है. It is the part of the PPT also. Intimation is one of the important documents. Appellate forums में relief नहीं मिलेगा. Only through the writ if you want to go for any sort of relief, if the amount involved is a substantial. Any more queries? I think we have taken the queries, all queries. Okay. Now I'll ask Rohit Porwal ji to give a well-deserved vote of thanks to Aanchal ma'am. Rohit ji, are you there? Yes, sir, I am here only. Thank you so much. Thank you, Ritesh sir, for giving me an opportunity to thanks
the very dynamic, energetic, and I would say 2-3 words मुझे और use करने चाहिए मैडम के लिए, because she well deserved for this prefix, because आपने जिस तरह से मैडम how the way you explain the laws, act, rules along with case laws, so it is very informative session for me as well, because actually the GST refund is actually important, because everyone of our client, we are, as I said, I am transferring my GST work to another person, so this give me an idea whether I also can proceed with the GST refund work and can get in touch with the department, because practically it is needed. अप्लाई करके देखिएगा, बहुत एंजॉय करेंगे. आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई अप्लाइड माय फर्स्ट रिफंड, माय क्लाइंट सेड मैडम इसका रिफंड नहीं मिलेगा. इट वाज एन एक्सपोर्ट हाउस, so I said that you leave on to me how to get the refund. And I still remember when I got my first refund, it was around 2 CR. I was so happy that not because I was under a challenge that iska nahi milega aur wo mil gaya tha. So it is just like winning a war. yeah, it's seriously, you will enjoy applying for the refunds and getting it for your clients. Yes, definitely. After watching this session, I really feel that I should start working on this also, because filing of income GST return is like become a very difficult task, because every time, as you know already, everyone is aware about it. So thank you so much. Thank you for searching. I will first My pleasure, thank sir. Thank you, sir. Borivali West CPE Study Circle for organizing this session and inviting you. And next, I'm thankful to you for explaining on behalf of everyone who has joined this session, for taking this a very enjoying session. I really enjoyed a lot with this session. Thank you so much. Thank you, Achal ma'am. I have certain announcement. Next week, Saturday, we have CA Navya Malhotra for GST frauds. I hope you will enjoy that too also. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you so much.